ریڈیو ویریتاس ایشیا اردو نیوز سروس میں خوش آمدید۔ میں ہوں فرانسس زیویئر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وطن عزیز پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کے لیے UAE میں خصوصی عبادت کا اہتمام۔ وارث پورہ فیصل آباد میں جشن آزادی کے موقع پر دعائیہ پروگرام کی تقریب۔ بین المذاہب مکالمہ کے رہنماؤں نے جشن آزادی پاکستان مل کر منایا۔ لاہور آرچ ڈائیوسز میں 5 ماہ کے بعد گرجا گھروں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا۔ کیتھولک ڈائیوسز آف حیدرآباد میں مقدسہ مریم کی رسم تاج پوشی کی گئی۔ سینٹ جوزف کیتھولک چرچ لاہور کینٹ میں ماں مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید منائی گئی۔ مقدسہ کلارا پیرش ہنری کے لاہور میں مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عبادتی تقریب۔ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ کے زیر اہتمام انسانی دوستی کا عالمی دن منایا گیا۔ یوحنا آباد لاہور کے 11 سالہ مسیحی ہیرو وائز ایلیزر نے کنکوڈیا بیس کیمپ K2 پہاڑ پر پہنچ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ ریورنڈ فادر رحمت راجہ کو کلیسیائے پاکستان نے خراج تحسین پیش کر دیا۔ بیلجیم میں مقیم پاکستانیوں نے 73واں یوم جشن آزادی آن لائن منایا۔ بنگلہ دیش کے کیتھولک بشپ صاحبان نے لوداتو سی سال کی مناسبت سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ پوپ جان پال دوم نہایت ایماندار اور اصولوں کے پابند انسان تھے۔ پوپ فرانسس نے جنرل آڈینس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلیم ایمان تمام حدود سے مبرہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہیڈ لائنز۔ خبروں کی تفصیل وقفے کے بعد۔ RVA اردو نیوز سروس، سچائی اور امن کی آواز۔ امن اور سچائی کی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائیوسز، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com۔ واٹس ایپ نمبر ہے 009333459155۔ ناظرین، آپ نے نیوز ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ جشن آزادی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور سلامتی کے لیے UAE میں عبادتی پروگرام کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر سینٹ مائیکل کیتھولک چرچ شارجہ اردو کمیونٹی کے زیر اہتمام جمعہ 14 اگست 2020 کو وطن عزیز پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی عبادت کا اہتمام کیا گیا، جس میں سینٹ پیٹرز اینڈ پالز چرچ عمان نے بھی شرکت کی۔ اس عبادت میں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے اور ہم اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس عبادت میں پاکستان سے خاص طور پر ریورنڈ فادر افضال OFM کیپ کی سربراہی میں زوم پر خصوصی یوخرستی عبادت خدائے عظیم و برتر کے حضور گزرانی گئی اور وطن عزیز میں امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ عبادت کے اختتام پر چارلز لازرس نے پاکستان کی تعمیر میں مسیحیوں کے کردار پر روشنی ڈالی۔ شرکا اور خاص طور پر بچوں نے ملی نغموں اور خصوصی پیغامات کے ذریعے UAE سے اہل وطن کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ اس تمام پروگرام کو منعقد کرنے میں UAE سے فلپ اینتھنی، صدر سینٹ مائیکل چرچ شارجہ اردو کمیونٹی، چارلز لازرس، جاوید جوڈ، عمران گل، ممتاز کاشف اور مسقط عمان سے پیٹر کھوکھر، اندریاس اور افضال نے اہم کردار ادا کیا۔ وارث پورہ فیصل آباد میں جشن آزادی پاکستان کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس دعائیہ تقریب کی قیادت ہولی روزری پیرش وارث پورہ لاہور کے پیرش پریسٹ ریورنڈ فادر پاسکل پولوس نے کی، جبکہ ان کے ہمراہ ریورنڈ فادر شکیل مائیکل OP، ریورنڈ فادر اظہر لال اور ریورنڈ فادر ایلون مہاراج نے معاونت فرمائی۔ اس عبادت میں پاکستان کی امن و سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان میں بین المذاہب مکالمہ اور کلیسیائی اتحاد کے رہنماؤں نے بشپ ہاؤس لاہور میں آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ کے ساتھ مل کر آزادی پاکستان مل کر منایا۔ اس موقع پر مختلف مذاہب اور کلیسیاؤں کے رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ ان میں ریورنڈ فادر اشفاق اینتھنی، ریورنڈ فادر اعجاز، ریورنڈ شاہد مراج، سردار بشن سنگھ، مولانا عاصم مختوم، حافظ قاسم رضا نقوی، سر شاہد امروز، جناب قاسم علی قاسمی، قاری خالد مقبول، ریورنڈ ایمینول کھوکھر اور مفتی سید عاشق حسین نے شرکت فرمائی۔ اس تقریب میں سب نے مل کر ملی نغمہ گایا اور آزادی کا کیک کاٹا۔ کرونا وائرس کی وبا کے 5 ماہ کے بعد لاہور آرچ ڈائیوسز میں گرجا گھروں کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ مورخہ 16 اگست 2020 کو سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل لاہور میں آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ کی قیادت میں کیتھیڈرل کو 5 ماہ کے بعد دوبارہ سے کھولنے کے لیے دعائیہ سروس کا انعقاد کیا گیا۔
इस मौके पर मुख्तलिफ कलीसियाँ और मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने शिरकत की। इन रहनुमाओं ने मिलकर कोरोना वायरस से निजात के लिए और इबादत गाहों को दोबारा से खोले जाने के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा किया। इनमें रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार, रेवरेंड शाहिद मराज, सरदार बिशन सिंह, मौलाना आसिम मखतूम, हाफिज़ कासिम रज़ा नकवी, जनाब कासिम अली कासमी, कारी खालिद मकबूल, रेवरेंड इमैनुअल खोकर, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शामिल थे। बिशप इरफान जमील ने इस मौके पर कहा कि कोरोना वायरस ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, खासकर ये कि हमने तमाम बुरी बातों से हाथ धोने हैं, इनसे मास्क पहनना है और इनसे फासला रखना है। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि 14 मार्च 2020 को CCPO की तरफ से गिरजाघरों को बंद करने का कहा गया था और तब से लेकर आज तक हम सब ने तवील इंतज़ार किया है। उन्होंने कहा कि हमारा यही मकसद रहा है कि सबसे पहले इंसानों को बचाया जाए और इस वजह से हमने ऑनलाइन इबादत का कोरोना वायरस के दौरान इंतज़ाम किया। इसके बाद बिशप जी ने सबके साथ मिलकर दुआ की और बरकत दी और सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल का मेन गेट सबके साथ मिलकर खोला। इस दुआया तकरीब में कहनाना बरादरी, पैरिश इंतज़ामिया, मुनाद साहिबान और मोमनीन ने शिरकत फरमाई। सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में 15 अगस्त 2020 को मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद भरपूर अंदाज में मनाई गई। मरियम ग्रुप ने मुकद्दसा माँ की अकीदत में रस्म ताजपोशी की। इबादत की क़यादत इज़्ज़त माब बिशप सैमसन शुक्रदीन ने की, जबकि उनकी मुआवनत रेवरेंड फादर जेम्स कैटलिनो, रेवरेंड फादर बाबर OFM और रेवरेंड फादर अजमल OFM ने की। बिशप साहब ने अपने वाज में कहा कि कलीसिया मुकद्दसा मरियम की ईद इस ईमान से मनाती है कि वो जिस्म और रूह से आसमान पर उठाई गई। खुदावंद यीशु मसीह अपनी अलूहियत के ज़रिए आसमान पर उठाए गए और मुकद्दसा माँ खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के ज़रिए आसमान पर उठाई गईं और वो आसमान की मलिका हैं। मुकद्दसा माँ की सिफ़ात हमारे लिए मशले राह हैं। इबादत के इख्तिताम पर तमाम मोमनीन को ईद की मुबारकबाद दी गई। इस इबादत में मोमनीन की बड़ी तादाद बड़ी अकीदत से शामिल थी और उन्होंने अपने नजराने माँ मुकद्दसा मरियम की अकीदत में गुजराने। 15 अगस्त 2020 को सेंट जोसेफ चर्च लाहौर कैंट में रेवरेंड फादर कैसर फरोज की सरबराही में माँ मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यूखरिस्ती इबादत में रेवरेंड फादर कैसर फरोज ने क़यादत फरमाई और रेवरेंड फादर अशफाक एंथनी ने मुआवनत फरमाई। मोहतरमा सिस्टर नेलांती और मोहतरमा सिस्टर मोरीन और टीचर्स की निगरानी में सेंट जोसेफ और सेंट एंथनी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने टैबलोस के ज़रिए और ताज पहनाने से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। इसी रोज़ रेवरेंड फादर हेनरी पॉल की क़यादत में मुकद्दसा क्लारा पैरिश हेनरी के लाहौर में मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद बड़े ईमानी जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर कैपुचिन बरादरी के निगरान सरदार आला रेवरेंड फादर आबद हबीब ने क़यादत फरमाई, जिनकी मुआवनत इलाका पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर हेनरी पॉल ने की। इस मौके पर हेनरी के स्कूल के बच्चों ने बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी तैयारी के साथ मुकद्दसा मरियम की अकीदत में खूबसूरत टैबलो पेश किए और मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी की रस्म नहायत खूबसूरती के साथ अदा की। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा और फलाही इदारे हर साल 19 अगस्त को इंसानी दोस्ती का दिन मनाते हैं। पाकिस्तान में ये दिन दारुल मुसरत वारिस रोड लाहौर में कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहिब मुकालमा के ज़ेर एहतमाम मनाया गया। इस तकरीब में रेवरेंड शाहिद मराज, रेवरेंड फादर अशफाक एंथनी, रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, रेवरेंड इमैनुअल खोकर, इलामा हसन रज़ा हमदानी, सैमसन सलामत, इलामा असगर आरिफ चिश्ती, मौलाना आसिम मखतूम और रेवरेंड सलीम खोकर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत फरमाई। इंसानी दोस्ती के इस आलमी दिन के मौके पर तमाम शुरका ने मिलकर केक काटा और इस बात का अहद किया कि हम वतन अजीज़ में अमन व सलामती को कायम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यूहानाबाद लाहौर के 11 साला मसीही हीरो वाइज एलिजर ने कंकोडिया बेस कैंप केटू पहाड़ पर पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उनको पाजू ट्रैक एंड टूर्स बल्टारो की जानिब से सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। वाइस एलिजर की उम्र 11 साल है और ये 6ठी जमात का तालिब इल्म है। इस पाकिस्तानी बच्चे ने 22 जुलाई 2020 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने 16 जुलाई 2020 को ट्रैक शुरू किया और 22 जुलाई 2020 को कंकोडिया बेस कैंप पहुंचे। नाज़रीन, इस वक्त आरबी उर्दू न्यूज़ सर्विस की एंकर पर्सन मिस इरम वाइस के घर पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसील से हमें मिस इरम आगाह करती हैं। शुक्रिया फ्रांसिस। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूहानाबाद में मौजूद हूँ वाइस के घर पर
पाकिस्तान को अगर सियाहों की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। बेशुमार दुनिया भर से जो सियाहत से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो आते हैं और आलमी रिकॉर्ड कायम कर जाते हैं, लेकिन आज जिस आलमी रिकॉर्ड के हवाले से मैं आपको बताने वाली हूँ यकीनन वो अनोखा भी है और हैरानकुन भी है। जी हाँ, वाइज जिसने 13 दिन में कंगोडिया बेस कैंप का ट्रैक मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आइए आज हम उनके घर पर मौजूद हैं और उनकी फैमिली से और उस होनहार नन्हे बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी वाइस, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे, कोहे पैमाई का शौक बड़े बड़े लोगों को होता है और बड़े बड़े लोग इसमें चित्त हो जाते हैं। आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ? मुझे ये शौक ऐसे पैदा हुआ कि मैंने अपने डैडी से पूछा कि किधर जा रहे हो। वो कहते मैं कंकोडिया बेस कैंप K2 का ट्रैक करने जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी जाऊँगा, पर उन्होंने मना किया कि ये ख़तरनाक है और ये मुश्किल भी है, पर मैंने कहा मैं कर लूँगा, मेरी फ़िक्र ना करें। तो वो मान गए। तो इसी तरह से मुझे शौक़ पड़ा और मैं फिर कामयाबी से वापस आया। अच्छा वाइस, आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की इसके लिए? मैंने ट्रेनिंग अपने डैडी से हासिल की है, क्योंकि मैं 2 ईयर से ट्रैकिंग कर रहा हूँ और मैंने ऐसी ट्रेनिंग हासिल की है। अच्छा भाई, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पर आप जा रहे हैं कंगोडिया बेस कैंप, बहुत सबसे मुश्किल है। तो मामा ने मना नहीं किया था जाने के लिए? नहीं, मामा ने पहले तो कहा कि मैं नहीं जाने दूंगी, पर जब डैडी ने उनको कहा कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, तो वो मान गई। उन्होंने थोड़ा सा सोचा और वो मान गई। ये आपको वाइस के वालिदैन से मिलाते हैं। बच्चे की कामयाबी में वालिदैन का किरदार बड़ा अहम होता है। वाइस की कामयाबी में आपका किरदार कैसा रहा? सिस्टर, हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वालिदैन का किरदार बहुत अहम है। तो जब मुझे इसने बताया, इसने कहा कि मैंने जाना है, तो मैंने इसे बताया कि पॉसिबल नहीं है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये तो बड़ों को जो है ये ट्रैक जो है नाकाम कर देता है, तो आप मुझे भी नाकाम कर दोगे। तो कुछ दिन इसी तरह से चलते रहे, लेकिन वो इंसिस्ट करता रहा। मैंने इसकी वालदा को पहले फिर कोशिश की मनाने की, उसने थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन वो मान गई। तो फिर जब वो मान गई तो फिर मैंने कहा कि अगर ये चूँकि ये मैं खुद जा रहा हूँ और अगर कहीं पे ख़तरनाक सिचुएशन होती है तो मैं वापस आ सकता हूँ इसे लेके। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो फिर मैं एग्री हो गया इस लेके। माओ के दिल तो बहुत नरम होते हैं। फिर वाइस को कैसे इजाज़त दे दी इतने मुश्किल ट्रैक पर जाने की? जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इसको भेजना। पहले तो मैंने इनकार कर दिया कि नहीं जाना, फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो फिर मैंने थोड़ा सोचने के बाद फिर मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि मुझे खुदावंद पे भरोसा था कि वो ज़रूर इसको खैर सलामती से वापस लेके आएगा जैसे ये जा रहा है। और शुक्र है खुदा का कि खुदा ने इसे कामयाबी से वापस लेके आया मेरे पास। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की। नाज़रीन, वाइस ना सिर्फ मसीही कौम का, ना सिर्फ यूहन्नाबाद का, बल्कि पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आश्र भाई और आबदा बहन की तरह अगर आपका बच्चा भी कोई ख़ास काम करना चाहता है तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब होकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। मिसिरम, इस तफसील के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वाइस के वालिदैन ने ये साबित कर दिया है कि बच्चों की कामयाबी और उनके ख्वाबों की ताबीर में वालिदैन का कितना अहम किरदार होता है। 15 अगस्त 2020 को रेवरेंड फादर रहमत राजा की याद में डोमिनिकन बरादरी की जानिब से पाक अरब सोसाइटी लाहौर में मेमोरियल इबादत का इनेकाद किया गया। इस इबादत की क़यादत पाकिस्तान में डोमिनिकन बरादरी के सरदार आला रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ने फरमाई और उनकी मुआवनत के फ़राइज़ पाकिस्तान में कैप्चन बरादरी के निगरान सरदार आला रेवरेंड फादर आबद हबीब, रेवरेंड फादर फ्रांसिस गुलजार, रेवरेंड फादर इमैनुअल मानी और रेवरेंड फादर थॉमस बट्टी ने अदा किए। इस मेमोरियल पाक मास में लाहौर डायसिस से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से काहिनों, सिस्टर साहिबात और मोमनीन ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रेवरेंड फादर रहमत राजा की तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। रेवरेंड फादर रहमत राजा के भाई रेवरेंड फादर थॉमस बट्टी ने इस मौके पर कहा कि उनके भाई एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे लिखारी भी थे। वो हमेशा नौजवानों से मोहब्बत करते थे और हमेशा उन्होंने नौजवानों की तरक्की और फलाह के लिए कोशिश की है।
गो के रेवरेंड फादर रहमत राजा हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी तहरीरें हमेशा हमारे दरमियान जिंदा रहेंगी। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी उर्दू कम्युनिटी के चर्च बेल्जियम में रेवरेंड फादर अदील मजहर की ज़ेर सरपरस्ती 73वां जश्न आज़ादी बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर खुसूसी ऑनलाइन इबादत का इनकाद किया गया। इबादत का मकसद आज़ाद रियासत के लिए शुक्रगुजारी और वतन अजीज़ के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना था। इबादत के आगाज़ में फादर अदील मजहर ने मुल्क की खुशहाली, बाहमी मोहब्बत, सलामती और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। बेल्जियम में कोरोना वायरस की वबा की वजह से सोशल गैदरिंग पर अभी भी पाबंदी जारी है। बांग्लादेश के 50वें जश्न आज़ादी और मुल्क के बानी मुजीबुर रहमान के यौम पैदाइश के मौके पर कैथलिक बिशप साहबान की जानिब से पोप फ्रांसिस के ऐलान करदा लौदातो सी साल को मनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। बिशप साहबान का मंसूबा है कि इस साल के अंदर अंदर पूरे बांग्लादेश में 4 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। इस प्रोग्राम की क़यादत आर्च बिशप ऑफ ढाका कर रहे हैं, जिन्होंने पहला दरख्त लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। पोप फ्रांसिस ने पोप जॉन पॉल दोम की 100 साला एनिवर्सरी पर मुनक्कद होने वाली खसूसी इबादत में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि पोप जॉन पॉल दोम दर हकीकत एक ईमानदार और असूलों के पाबंद इंसान थे। ये दुआया तकरीब सेंट पीटर्स बेसिलिका में उस अल्तार पर गुजरानी की जिसके नीचे पोप जॉन पॉल दोम का मकबरा है। गुज़िश्ता इतवार पोप फ्रांसिस ने जनरल ऑडियंस से खिताब करते हुए कहा कि हलीम ईमान तमाम हदूद से मुबर्रा है। उन्होंने कनानी औरत के ईमान पर रोशनी डाली जो अपनी बेटी की तंदुरुस्ती की ख्वाहां थी और बताया कि इससे ये जाहिर होता है कि आजिज ईमान की कोई हदूद नहीं होती हैं। जब यसूल मसीह गलील में थे तो एक कनानी औरत उनके पास आई और अपनी बेटी की शिफा की इल्तजा की। ये खातून बेबस थी और मदद की तलबगार थी। कनानी औरत ने माँ होते हुए अपनी बेटी की शिफा के लिए अपनी दुआ और ईमान में साबित कदमी का मुजाहरा किया। फ्रांसिस ज़ेवियर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।